classes is much more having importance. So today's class is on the spore dispersal Okay, sir. mechanism. It is the spore dispersal mechanism of the bryophytes, right? It's a little bit typical, and this is more advanced part of the bryophytes that we are learning. First of all, I told you the elaters. इलेटर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. पहले तो हम लोग देखे थे कि we have seen these peristome teats as a spore dispersible technique, but now we will see the elaters. What are these elaters? Elaters are basically a ribbon-like structures which is attached to the wall of the spores. Okay, elaters are ribbon-like structures which are attached to the wall of the spores, and it is an elongated structure that helps to disperse the spores. It is a spore dispersal technique or tool, we can say, by the technique of coiling and uncoiling these ribbons, right? In response to the change of the humidity, as and as humidity changes, so it reacts as per the humidity of outside, and it either coils and or it in uncoils. Elater of Horsetails, which is called as a equisetum, suppose we are there. Bands are attached to the spore wall, while those are liverworts. They are the sterile cells. In case of liverworts, these are the sterile cells. Elater are the sterile cells. But in case of horsetail अभी हम लोग नहीं पढ़े, तो ये लाइन हमारे लिए अभी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बाद में आएंगे. In case of liverworts, that means in Mercantia, it is occurring among the spores. स्पोर वॉल में ही रहते हैं, ठीक है. Whereas in this case of horsetail, it is the spore wall में रहते हैं, spore wall में. तो इलेटर का पिक्चर देखेंगे. इलेटर सबसे पहले तो we will know that elater are the ribbon like structure which is actually help to disperse the spores. स्पोर डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं. by how? By coiling and uncoiling, and that is the response to the environmental humidity. This coiling and uncoiling is on the response to the environmental humidity. नीचे में आप देखो, elater's function is to increase the dispersal because it pushes, the elater pushes the spore out of the plant by absorbing the moisture. As it absorbs the moisture, इसका uncoiling होते हैं, और due to this uncoiling ये स्पोर को बाहर के दिशा में पुश आउट करते हैं, बाहर की दिशा में पुश आउट करते हैं. एक बार पिक्चर देखोगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे. इट इज अ जस्ट थ्योरी. नेक्स्ट वी विल से दैट elaters found in capsules of the bryophyte, it is actually inside the capsules and play the important role in bursting. ये spore dispersal को called is as a bursting. इसको bursting कहेंगे. Bursting is called as a spore dispersal technique or spore dispersal. We will write it spore dispersal. स्पोर डिस्पर्सल को बर्स्टिंग कहते हैं. द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए आएंगे, टर्म्स आएंगे. हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द इलेटर्स अलाउ देम टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर. बाहर से एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे. एज ए रिजल्ट विच दे स्वेल, वो उसमें स्वेलिंग हो जाएगा. And the swelling of elaters exerts pressure on the wall of the capsules, which ultimately leads to the dispersal of the spores. Hygroscopic का मतलब है जो substances बाहर से absorb करते हैं moisture को. Any substances that absorbs the moisture from outside is called as a hygroscopic substances.
तो इलेटर का जो नेचर है, इलेटर का नेचर है हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब वो बाहर से फ्रॉम द आउटसाइड वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद ये स्वेल हो जाएगा। नेचुरली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से वो स्वेल अप हो जाते हैं। स्वेलिंग हो जाने से वो स्पोर को इनर साइड से आउटर साइड में एक प्रेशर से वो आप थ्रो करते हैं, और थ्रो करने से इट इज कॉल्ड एज बर्स्टिंग ऑफ द कैप्सूल्स। तो कैप्सूल को बर्स्ट करते हैं। सपोज ये कैप्सूल इस टाइप का था, जब ये स्वेलिंग हो जाएगा, ये कैप्सूल इस टाइप का स्वेलिंग हो जाएंगे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए, देन द स्पोर्स इनसाइड इट विल बी गिव प्रेशर टू द कैप्सूल वॉल, और ये कैप्सूल फिर इस तरह से बर्स्ट हो जाएंगे, इसका मुंह जो है इस तरह से ओपन हो जाएंगे, राइट, and the spore will come out over here. So this is the way that the elaters actually works. Now we will see the where the elaters are and how the elaters look like. Now in this picture you will see over Sir, here. बोलो सर हाइग्रोस्कोपिक मीन? हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंसेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरमेंट से। The substance that absorbs the moisture from environment is called as hygroscopic. ये Yes, देखो एक पिक्चर दिखाया है, ये है कैप्सूल्स, राइट? दिस इज कॉल्ड कैप्सूल्स। नाउ कैप्सूल्स का ये जो है, these are the elaters. I write over here, these are the elaters over here. ये सब elaters है। अब ये elaters जब बाहर से एब्जॉर्ब, इसके ऊपर देखो स्पोर लगा हुआ है, राइट, इसके ऊपर स्पोर का अटैचमेंट है। जब ये बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को, तब ये इस तरह से ये कैप्सूल्स फट जाएंगे। यू कैन सी ये कैप्सूल्स इस तरह से बर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि ये कैप्सूल स्वेल हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ये मॉइस्चर और कैप्सूल्स दोनों है, ये दोनों निकल के आ जाते हैं, ठीक है। ये इलेटर्स और द स्पोर्स, ये दोनों निकल के आ जाते हैं, करेक्ट। सो समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो मेरी बात को? हेलो, यस सर, यस सर। सो ये क्या होगा, हाँ ये क्या होगा, इसका मतलब है इलेटर्स जो है वो बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और इसके साथ साथ कैप्सूल्स जो है स्वेलिंग हो जाएंगे, और जैसे ही स्वेलिंग हो जाएंगे ये इलेटर और कैप्सूल दोनों ही बाहर की तरफ थ्रो आउट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज बर्स्टिंग। जैसे बर्स्ट करते हैं ना कोई भी चीज, इसको बर्स्टिंग ऑफ द कैप्सूल्स कहते हैं। अगर हम इस पिक्चर को भी देखें, इस तरह से अगर हम पिक्चर को देखें, सो दिस इज द कैप्सूल दैट हैज बीन स्वेल्ड, ये एब्जॉर्ब किया। रेड जो है, रेड लाइन, दीज आर इलेटर्स, राइट, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इसी तरह से स्वेल हो जाएंगे, उसी तरह से ये बाहर की दिशा में ये कैप्सूल वॉल को पुश करेंगे, बाहर की दिशा में कैप्सूल वॉल को पुश करेंगे। जैसे ये कैप्सूल वॉल को पुश करेगा, नाउ द इलेटर ऑल्सो पुश्ड इटसेल्फ आउटसाइड। इलेटर खुद को भी आउटसाइड में इस तरह से पुश करेंगे, और करते ही यहाँ पर ही जितने स्पोर था वो सारे स्पोर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये है इसकी स्पोर डिस्पर्सल टेक्निक। तो व्हाट इज इलेटर? इलेटर इज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू द स्पोर डिस्पर्सल। ये स्पोर डिस्पर्सल में काम करेंगे। कैसे? कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग। ये जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते तब ये कॉइलिंग फॉर्म में रहते हैं, राइट, ये कॉइलिंग फॉर्म में रहते हैं। और ये कॉइलिंग फॉर्म के अंदर में देयर विल बी, ये डॉट डॉट जो देख रहे हो ये स्पोर है इसके साथ है। इफ आई टेक अनदर कलर देन इट विल बी बेटर ऑब्जर्व इन बेटर वे। तो अगर हम इसमें देखेंगे, so these are the blue color, these are the spores within the elaters, ठीक है। जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, now it becomes the
इन अ स्ट्रेट मैनर, ये स्ट्रेट हो जाएंगे और इसके पास ये स्पोर लगा हुआ है। एज बिकॉज वाटर, ड्यू टू दी वाटर इट बिकम्स अ स्टिकी, ये स्पोर जो है थोड़ा सा स्टिकी हो जाते हैं और इस तरह से ये जैसे ही ये कैप्सूल को बर्स्ट करेंगे, नाउ द स्पोर्स एंड द इलेटर्स दे विल कम आउट ऑफ द कैप्सूल्स, ये कैप्सूल से बाहर निकल के आ जाएंगे। इस तरह से इलेटर काम करते हैं। आगे की और पिक्चर भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीवर वॉर्ट की बात करेंगे, क्योंकि इलेटर्स कहां पर ही होगा, जनरली स्पोरोफाइट पे होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट ही स्पोर डिस्पर्स करते हैं। आप देखिए ये इस जगह पे देखिए, ये जो ग्रीन सब्सटेंसेस दिखा रहा है ये गैमेटोफोर का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द गैमेटोफोर एंड दिस इज द स्पोरोफाइट। मैं मार्केंशिया का केस में आपको बता रहा था, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एग फर्टिलाइज्ड, बट ये जो जाइगोट या एम्ब्रायो है इट इज बीन अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द स्पोरोफाइट। इसका अलग से फूड सेटा और कैप्सूल दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें एक मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म ये है इलेटर, दिस इज द इलेटर, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द रिबन लाइक एंड स्ट्राइप लाइक इलेटर्स। जब ये कंडीशन है कि जब ये हाइग्रोस्कोपी आई मीन जब ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते तब ये इस तरह से दिखते हैं, यानी कि एक एक इलेटर इसमें आपके साथ लगा हुआ है, एक एक इलेटर एक एक स्पोर के एक यहाँ पर एक दिखाया है, ऐसे 2-3 स्पोर हो सकते हैं के साथ इस तरह से कॉइलिंग किया हुआ है, कॉइलिंग। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, ये धीरे धीरे इस तरह से खुल जाते हैं, ये स्ट्राइप जो है इस तरह से ये खुलने लगते हैं, ये स्ट्राइप जो है इस तरह से खुलने लगते हैं। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, जब ये एब्जॉर्ब कर जाएंगे तब ये स्पोर खुल जाएगा, देखिए स्पोर ओपन हो गया, और जब ये कैप्सूल फटेगा तब ये इलेटर के साथ स्पोर भी बाहर निकल के आ जाएंगे, स्पोर भी बाहर निकल के आ जाएंगे और इलेटर भी अलग से आ जाएंगे। सो दिस इज द मैकेनिक ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ इलेटर्स। अब ये क्वेश्चन आते हैं, ये इलेटर किसमें रहता है और कौन कौन सी ब्रायोफाइट में इलेटर रहते हैं और इलेटर की इस तरह का फंक्शन कौन कौन करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल टच कर रहा हूं आज, ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बोलना, मैं तुरंत इसको रिवाइंड करके पहले से बताऊंगा। देखो अंडर द मॉइस्ट कंडीशन, जब कंडीशन मॉइस्ट है यानी कि जब बाहर में थोड़ा सा पानी की मात्रा जैसे बरसात के रीजन में होते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन है, द इलेटर्स कर्ल टाइटली अराउंड द स्पोर्स। अब देखो थोड़ा सा उल्टी बात बोल रहे हैं, कहने का मतलब कुछ और है। अराउंड द स्पोर्स, द वेट स्पोर्स टेंड टू स्टिक टू ईच अदर एंड टू नियर बाई सरफेसेस। अच्छा ये जो इसको है ये आपको अभी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला था, अभी मैंने क्या बोला कि ये कि ये वाटर जब एब्जॉर्ब करेंगे तब ये इस तरह से खुल जाएंगे, और जब ड्राई कंडीशन रहेगा तब ये इस तरह से कॉइलिंग होके रहेंगे। लेकिन इस स्लाइड में कुछ और ही कह रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और एडवांस जाके बैक रिटर्न आ जाता हूं। इसको हम लोग कहेंगे एक मिनट। There are basically two type of bryophyte species are there. There are basically two type of bryophyte species. ये depending on the depending on the spore dispersal technique. Two type of species. Species का एक नाम है आपका, इसको कहते हैं, ये देखो, इसको कहते हैं जेरोकास्टिक स्पीसीज। इसके बाद हम लोग वो सेकंड वाला थर्ड वाला स्लाइड में चलेंगे, तो हम इसको इस तरह से बताएंगे। एक सेकेंड, हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दी डिपेंडिंग ऑन दी स्पोर डिस्पर्सल, राइट, ऐसे लिखेंगे हम, डिपेंडिंग ऑन स्पोर डिस्पर्सल
ब्रायोफाइट की बात करेंगे, अभी ब्रायोफाइट की बात करेंगे, जब बाद में सीखेंगे तो बाद की बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स कैन बी टू टाइप्स। क्या क्या टू टाइप है? नंबर वन, इट इज कॉल्ड एज, टेक अ डिफरेंट पेन, दिस इज कॉल्ड एज जेरो कास्टिक कहते हैं इसको, CASTIQUE, इसको कहते हैं जेरोकास्टिक स्पीसीज। जेरोकास्टिक स्पीसीज जब कहेंगे तब पूरी प्लांट किंगडम को ही बताएंगे, फिलहाल स्पीसीज छोड़ दो, जेरोकास्टिक। एंड देयर विल बी अनदर टाइप विच इज कॉल्ड एज, इसको हाइग्रो भी कहते हैं और हाइड्रो भी कहते हैं, हाइग्रोकास्टिक, हाइग्रोकास्टिक। ये दो टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पोर डिस्पर्सल, ब्रायोफाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड एज जेरोकास्टिक और ये है हाइड्रोकास्टिक, हाइग्रोकास्टिक या हाइड्रोकास्टिक, दोनों वर्ड ही हाइड्रो और हाइड्रो और हाइग्रो। जेरोकास्टिक में क्या है? जेरो का मतलब है जेरो का मतलब है ऑरिड कंडीशन, जेरो का मतलब है ऑरिड कंडीशन, ऑरिड का मतलब है ड्राई, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, एक्सट्रीम और ड्राई कंडीशन। जैसे जेरोफाइटिक प्लांट हम अगर बताएंगे, जेरोफाइटिक प्लांट इज है कौन सा? कैक्टस। कैक्टस इज अ जेरोफाइटिक प्लांट, यानी कि ऑरिड सिचुएशन में ग्रो करते हैं, पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं। तो दीज आर द जेरोफाइटिक। तो जेरोकास्टिक का मतलब क्या है? नाउ इन दिस कंडीशन, थोड़ा सा मैं बताने से पहले आप अगर थ्योरी को भी साथ साथ देखो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। In xerocastic species are those where exostome, आपने पढ़ा होगा exostome, close cover the mouth of during the humidity, ठीक है? Exostome cover the mouth during the humidity and check the entry of the water and release of the spores. जेरोकास्टिक में क्या होते हैं? जेरोकास्टिक में जब वाटर का भरपूर होता है, यानी कि बाहर में मॉइस्चर होते हैं या रेनी कंडीशन में, व्हेन मॉइस्चर आउटसाइड, व्हेन मॉइस्चर आउटसाइड, एक्सोस्टोम इज क्लोज्ड। गौर से सुनो, एक्सोस्टोम इज क्लोज्ड। इलेटर या तो पेरिस्टोम में हमने क्या देखा था? पेरिस्टोम में दो देखा था हमने, पेरिस्टोम का कंडीशन में एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम। मैंने कहा था इसको एक्सोस्टोम है, ये टीथ लेयर विच इज कॉल्ड एज एक्सोस्टोम, एंड इसका अंदर में है एंडोस्टोम। याद करो कल मैंने बताया था एंडोस्टोम। तो ये जब condition is moisture outside, exostome is closed and it checks, actually दो चीज को चेक करता है, एक वाटर का एंट्री बिल्कुल ना हो, वाटर का एंट्री बिल्कुल कैप्सूल के अंदर ना हो और स्पोर किसी तरह से बाहर नहीं आ पाए, स्पोर आउटसाइड और स्पोर डिस्पर्सल। क्या लिख रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, जबकि मॉइस्चर आउटसाइड में पानी में या हवा में नमी है, मॉइस्चर है, उस कंडीशन में एग्जॉस्टोम क्लोज हो जाते हैं टाइटली, सो दैट कितना भी बारिश आए, कितना भी बारिश की पानी गिरे, वाटर का एंट्री बिल्कुल नहीं होगा और स्पोर डिस्पर्सल नहीं होगा। तो कब ये डिस्पर्सल होगा? ये डिस्पर्सल कब होगा? व्हेन air is dry, when the air is too dry, very dry, हवा में बारिश की नामो निशान नहीं है,
एक्सोस्टोम ओपन, एक्सोस्टोम ओपन। इसका मतलब है जेरो कास्टिक हम लोग उसी को बताएंगे जिसमें एयर इज द ड्राई, सो एक्सोस्टोम ओपन। इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में एक्चुअली व्हेन इट एक्चुअली इट इज द ड्राई कंडीशन, तब ये ओपन कर देगा, स्पोर को ओपन कर देंगे, करेक्ट। अब आते हैं हाइग्रोकास्टिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हाइग्रोकास्टिक किस कंडीशन में होगा? हाइग्रोकास्टिक, हाइग्रोकास्टिक किसको हम कहेंगे? हाइग्रोकास्टिक किसको हम कहेंगे? कैप्सूल ओपन्स, कैप्सूल और एक्सोस्टोम, एक्सोस्टोम ओपन होगा, एक्सोस्टोम ओपन्स। कब ओपन होगा? व्हेन एयर इज फुल ऑफ वाटर, एयर हैज मॉइस्चर। एयर में जब मॉइस्चर है तब एक्सोस्टोम ओपन होगा। और क्लोज कब होगा? ये क्लोज कब होगा? व्हेन एयर हैज नो मॉइस्चर, जब एयर में कोई मॉइस्चर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? एक्सोस्टोम, इस कंडीशन में एक्सोस्टोम एब्सॉर्ब्स वाटर, इस कंडीशन में एक्सोस्टोम एब्सॉर्ब्स वाटर, देयरफॉर इट अनकॉइल्स, ये अनकॉइल्स हो जाएगा। पहले क्या था? ये इस तरह से कॉइलिंग था, और कॉइलिंग के अंदर क्या था? कॉइलिंग के अंदर में स्पोर था, कॉइलिंग के अंदर में स्पोर था, राइट। ये स्पोर था, तो स्पोर के चारों तरफ ये कॉइलिंग किया हुआ था। व्हेन इट एब्सॉर्ब्स द वाटर इट एक्चुअली अनकॉइल्स, तब ये अनकॉइल हो जाएंगे, इस तरह से ये अनकॉइल हो जाएंगे और इसके ऊपर स्पोर होगा। Now exostome absorbs the water and uncoils, so there will be spore dispersal, spore dispersal होगा। Dispersal in what way? Bursting, इसको क्या कहते हैं? Bursting, bursting of spores, और capsules भी कह सकते हो, bursting of capsules। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी तक? इसमें इसी स्लाइड पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ये आगे, हाँ। Now what we are talking about, ये जब हम इलेटर की बात कर रहे थे, सॉरी, ये जब हम इलेटर की बात कर रहे थे, when it actually absorbs the water, है ना, ये absorbs the water, moisture, and then it opens, absorbs the moisture and the elater opens। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे किसका? हम लोग किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? ध्यान दो, ध्यान दो। हाइग्रोकास्टिक, यस, हम लोग हाइग्रोकास्टिक, हाइग्रोकास्टिक स्पीसीज की बात कर रहे थे। हम लोग हाइग्रोकास्टिक स्पीसीज और ब्रायोफाइटा की बात कर रहे थे, जिसमें इलेटर्स बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये बस्ट कर जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ओपन होकर स्पोर को डिस्पर्सल करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, ये था उसकी ये प्रोसेस। ये प्रोसेस में मैंने ना तो हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोकास्टिक लिखा, ना तो जेरोकास्टिक लिखा। अब हम लोग बात करेंगे अंडर द मॉइस्ट कंडीशन द इलेटर कर्ल टाइटली। जब मॉइस्चर बाहर होगा तो ये इलेटर्स टाइटली कर्ल्ड हो जाएंगे, एंड द वेट स्पोर्स टेंड टू स्टिक टू ईच अदर। वेट स्पोर्स टेंड टू, क्योंकि अंदर में स्पोर जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, वाटर है, थोड़ा स्टिकी होते हैं, टू नियर बाई सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वेन कंडीशन इज ड्राई। सो ये जगह में हम किसकी बात कर रहे थे? वेन देयर इज अ मॉइस्ट कंडीशन दे आर क्लोजिंग टाइटली। ऑपोजिट पिक्चर देखो, ये इस तरह से दिखा रहे थे, अब हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। समझ में आया? ये था इस कंडीशन में, ये क्या था? इस कंडीशन में ये 1 था एंड 2 था डिस्पर्सल, और इस कंडीशन में ये 1 है,
ये है टू है डिस्पर्सल कंडीशन, मैंने सॉरी टू कॉइलिंग कंडीशन। इसका मतलब अगर बाहर में मॉइस्चर है, इफ वी लुक एवर दिस इज द मॉइस्चर कंडीशन, moist condition, then actually it curl inside, ये कर्लिंग हो जाएंगे। जब ये ड्राई होगा तभी ये इस तरह से खुलेगा। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी जेरो कास्टिक। ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन में हम लोग बात करेंगे किसके, जेरो कास्टिक की बात करेंगे। Zero caustic. हाँ, वी विल टॉक अबाउट दी जेरो कास्टिक, जेरो कास्टिक स्पोर डिस्पर्सल की बात करेंगे। When the condition is dry, the spores no longer stick to the each other and are more easily dispersed. जब हम इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सॉरी ओके, so when the condition is dry, the spores dispersed. तो ये है xerocastic की एग्जाम्पल। At that time, the elaters uncoil to extend out from the spore and will catch the air current. जैसे ड्राई में एयर करंट होगा, ये एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा ये ड्राई होके ये फट जाएंगे। और the fact that they are extended only when condition is dry, बार बार बोल रहा हूं, ये condition is dry, then it is actually dispersed. So ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हम लोग बता रहे हैं किसका, ये स्लाइड हम लोग बता रहे हैं जेरो कास्टिक टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, करेक्ट। तो इस कंडीशन में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हाइग्रोस्कोपिक और हाइग्रोकास्टिक। और इस कंडीशन में हम बात करेंगे जेरोकास्टिक। तो ये आप किसी पिक्चर में भी लगा दो, आप ये किसी भी पिक्चर में लगा दो। अगर आप इसको ड्राई बताओ, ड्राई कंडीशन में भी इस तरह से फटेंगे और ये इलेटर के साथ ये स्पोर निकल के आएंगे। और अगर ये वेट कंडीशन है तभी भी इस तरह से वो फटेंगे और स्पोर निकल के आएंगे। इसीलिए मैंने कोई नाम नहीं लिखा, ठीक है। जेरोकास्टिक और हाइग्रोकास्टिक दोनों के लिए डिस्पर्सल टेक्निक एक ही है, खाली इसका टेक्निक आपकी चेंज हो जाएंगे। किस जगह पे, हाँ, किस जगह पे चेंज हो जाएगा, इसी में। अगर ये जेरोकास्टिक है तो ये इस तरह से एयर जब ड्राई होगा तो ये फट के निकलेंगे। अगर ये हाइड्रोकास्टिक है, जब एयर मॉइस्चर है तब ये फाइट के निकलेंगे। तो दोनों का यही डिफरेंसेस है। अब आते हैं इलेटर का, थोड़ा सा और थ्योरी भी हम रखेंगे साथ में, बट ये जरूरी नहीं है। आप अगर चीजों को समझ गए, ये खाली आपके पास नोट जैसे होते हैं, वो नोट रखने के लिए। ईच इलेटर हैज 2 स्पाइरल बैंड्स and is filled with the water. The water in each elater begins to evaporate so that elater becomes distorted. ये किसकी बात कर रहा है, जेरो की बात कर रहा है, क्योंकि अंदर में उसका वाटर होता है। जैसे कंडीशन ड्राई होगा, ज्यादा धूप निकलेगा तो इलेटर ड्राई हो जाएगा, वाटर इवापोरेट करेंगे और वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, वो तोड़ के निकल के आ जाएंगे। With the thinner areas between the spiral bands being sucked inwards, the whole elaters also became twisted into a tight helix. ये आपका थ्योरी का पूरा थ्योरी पार्ट है जो आप बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपकी फर्दर रेफरेंस चाहिए तो। लेकिन मैंने आपको एक थॉरोली बता दिया कि किस तरह से इलेटर फट के निकलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग की बात हो रहा है, ये डूइंग द ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्ट, इतने वायोलेंटली ये अनट्विस्ट होते हैं दैट ये ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द कैप्सूल वॉल एंड स्प्रिंग्स इनटू द एयर। स्प्रिंग की तरह जंप करके एयर में चले जाते हैं एंड इजेक्टिंग द लोड ऑफ स्पोर्स इन द प्रोसेस। नाउ कम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नीट एंड AIPMT पॉइंट ऑफ व्यू। They are present inside the capsule of Mercantia. दे का मतलब किसकी, देखता हूं किसका ये है, कॉमन सेंस है, बताओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे सभी इंटेलेक्चुअल है, बहुत है।
दे किसको बोल रहे Zero हैं? castigan है group. वेरी गुड, Later, sir. वेरी गुड, वी आर कैरिंग द इलेटर। Elator. इलेटर की बात करेंगे। इलेटर आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मर्कांशिया एंड सर्व द स्पोर डिस्पर्सल। रिक्शिया एंड फुनारिया लैक्स द इलेटर। क्लीन एंड क्लियर लिखा हुआ है। सिर्फ मर्कांशिया में इलेटर है। देखो इलेटर और स्पोर डिस्पर्सल टेक्निक। इलेटर इज अ टूल, मैं बार बार लिख रहा हूं, देखो इलेटर इज अ टूल फॉर स्पोर डिस्पर्सल। टेक्निक क्या होगा? टेक्निक कैन बी डिफरेंट। टेक्निक कैन बी either it is a zero, that means as per the technique it can be zero or it can be high grow। टेक्निक में जीरो और हाई ग्रो दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो टूल है वो है इलेटर। और इसमें क्या होगा? इसमें है रिक्शिया, फुनारिया, स्फैग्नम हैव पेरिस्टोम, दे डू नॉट हैव इलेटर। तो इलेटर और पेरिस्टोम, पेरिस्टोम टीथ, ये दोनों है आपका टूल। दीज आर ऑल्सो अ टूल। समझ में आया? बट टेक्निक कैन बी जीरो और इट कैन बी हाई ग्रो, दोनों हो सकते हैं। इलेटर टूल। हेलो, क्या आप कुछ बोल रहे थे? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज सर। ब्रेक, मेरा आवाज हाँ। ब्रेक हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। होल्ड द लाइन प्लीज, होल्ड द लाइन। या ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आप देखो ठीक है? आप ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. सर Yes, So, sir. आप या चुप करो। अभी आपको याद क्या रखना है कि दोनों टूल है। स्पोर डिस्पर्सल का दो टूल है। स्पोर डिस्पर्सल का टूल क्या क्या है? एक है आपका इलेटर्स और दूसरा क्या है? दूसरा है पेरिस्टोम। नाउ स्पोर डिस्पर्सल का दो टूल है। वन इट इज कॉल्ड एज, ओ सॉरी ये योलो हो गए। एक सेकेंड ये इंक कलर। Elator. हाँ नहीं मैं वो नहीं कर रहा था, मेरा वो पॉइंटर जो है वो हाइलाइटर में बन गए। एनीवेज, सो वन is called as elater and other is And called as peristome। Peristome. हाँ, टूल है दो, टेक्निक है दो, जीरो और हाई ग्रो। इलेटर सिर्फ आपको मर्कांशिया में मिलेगा, ये क्वेश्चन आ देते हैं। और ये पेरिस्टोम जो है वो मिलेगा रिक्शिया, फुनारिया, स्फैग्नम हैव्स पेरिस्टोम एज अ स्पोर डिस्पर्सल मेकानिज्म। पेरिस्टोम इज अ रिंग ऑफ ट्रायंगुलर टीथ। कल मैंने बताया था इट इज अ टीथ, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप टीथ होता है इस टाइप का ना, नीचे की तरफ ट्रायंगुलर टीथ। अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ डेड सेल्स। रेमनेंट, इट इज अ डेड सेल। These are the sterile cell, dead cell, thickened cell walls. They are usually 16 teeth in each peristome. हम जानते हैं एंडोस्टोम में 16 teeth, एक्सोस्टोम में 16 teeth. So there are 32 teeth. They separate from each other and able to fold to cover the stoma. Stoma इस जगह में हम लोग स्टोमा का। अब हम लोग आएंगे, पहले आपको यही समझा देते हैं आपको। नाउ वी विल कम टू दी, कल मैंने आपको बताया था एक स्टोमा के बारे में बताया था। क्या बताया था स्टोमा के बारे में? हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। म्यूट करो ना सबको, कोई अच्छा, हवा फूक रहा है यार। एक मिनट।